अरे फोन दिशा मंडे को कॉलेज वो सबसे पहले बोल देती कुछ तो चलो लिसन पेज नंबर 21 page 237 छोड़ प्रैक्टिकल सबमिशन के जेरो को नतु के अबे इज्जत में मेरा भी सर ये को भूल गया था पूछा ही अरे भूल गया था सब नंबर 21 ऑल ऑफ यू टेक आज के चारों शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। Katrina company is incorporated with an authorized capital of 10 lakh rupees. अब authorized capital we have discussed. What is an authorized capital? It is an upper limit, right? Authorized capital is an upper limit. Is it clear? बस वो से धीरे धीरे अरे पण ये એટલા લોકો છે 25 નહીં 6 વાગે તો ચાલે છે રાષ્ટ્રમાં 6 વાગે જાય સર અમારા બધાને લઈ ગયું છે चलो हां सर सुमारा भी फोन साथी रात में बात करेंगे 10 lakh is authorized divided into 1 lakh equity shares of 10 each. The company issues 80,000 shares of 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 3 on final call. So 2, 3, 2, 3. Application, allotment, first call and second call. That's your breakup. Guys, applications were received for 75,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Very good. Because issue was of 80 and subscription आया 75 था. तो ज्यादा है कि कम है. बराबर. तो कितना शेयर्स का एंट्री कर सकते हो आप? 75. आपके पास चॉइस ही नहीं है. जट मार के आपको 75,000 शेयर्स का ही एंट्री करना पड़ेगा. सही बात. Then P was allotted 600 shares, did not pay the allotment money on 500 shares. Similar सा प्रॉब्लम हमने किया था 12 में, याद होगा. Q was allotted 800 shares, did not pay the first call. R was allotted 400 shares, did not pay the final call. All the above shares were forfeited and reissued at 9 rupees. Past journal entry. Let's begin first one. क्या होगा बताओ? बैंक टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 75 into 2, that is 1,50,000. Is that correct? Short narration लिखना, application receipt. Short narration, 2 words. 2 words. 2 words लिखो, रिवाइज करते वक्त काम आएगा. Please write short narration. Write short narration. So, second one, do you have any excess money problem? No. Please, done. It is equity share application to equity share capital. Again, I think it should be 1,50,000 only. Yes? This is application transferred to capital. Correct? Application transferred to capital. Okay? Then allotment due ki allotment received? Due. There is no premium as such. So equity share allotment to equity share capital. Equity share allotment to equity share capital. I think it should be 75,000 into 3, 2,25,000. Correct? This is allotment due. Allotment due. Okay? Then you go for receiving the money. Are there any call in arrears at the time of allotment? Yes. So entry बनेगा bank call in arrear to equity share first call. Focus now. Allotment. Sorry, equity share allotment. ध्यान दो. 2,25,000. उसमें कॉल इन अरियर देखो कितना शेयर्स पे आएगा. 600 पे कि 500. उसके पास थे 600, लेकिन बंदे ने भरा नहीं. कितने शेयर्स पे? 500 शेयर. दिख रहा है आपको? He was holding 600 shares, but he defaulted on 500 shares. मिला? So ऐसा नहीं है कि बंदे के पास जितने शेयर हो सारे के सारे कॉल इन अरियर में लेना है. जितने में उसने नहीं भरा है ना, वो कॉल इन अरियर. तो उसने 500 पे नहीं भरा, तो 500 इंटू 3, 1500. समझा? हेलो. एंड ये आएगा 2,23,500 आई थिंक. बराबर 6. दिस इज अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल इन अरियर एडजस्टेड. ठीक है? बराबर 6. Then you go for first call. So equity share first call to equity share capital. सोच के बताओ ड्यू अमाउंट में कितना लेंगे? 150. ड्यू अमाउंट में कभी कोई चेंज करना नहीं है आपको. ठीक है? ड्यू अमाउंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. बात समझ आई? No need to make any changes in due amount. Okay? But receive करते वक्त वापस लोचा हो गया. What happened at the time of receiving? It is bank. Then what? Call in arrear to equity share first call. बराबर? We were expecting 150. Now who is defaulting? Only P या P and Q both? Because once a defaulter, always a defaulter. So P का 500 shares plus
क्यू का 800 शेयर्स, 1300 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है. सो 1300 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2600. ये हो गया आपका कॉल इन अरियर. बात समझ आई? हेलो, 147,400 आया बैंक में. दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव एंड कॉल इन अरियर adjusted. First call received and call in arrear adjusted. Is that clear? Hello. Then you go for second call. So it is equity share second and final call to equity share capital. Due amount का entry है. What should be the amount? 75 into 3, 2,25,000 बराबर 2,25,000. This is second call due. Second call due बराबर. Then you go for receiving the money. It is bank call in arrear to equity share second and final call. Who is defaulting on second and final call? I think 3 people. P, Q and R. Am I right? So P का 500, Q का 800 ज्वाइन हो चुका है एंड R का 400. तो अपने हिसाब से 1700 होता है. 1700 multiplied by 3, 5,100 is call in arrear, 2,25,000, 219,900. ये समझ आया? Once a defaulter, always a defaulter. Second and final call received and call in arrear adjusted. Call in arrear adjusted. Correct? Then the company is going a step ahead. Sorry. Company is moving a step ahead and it is cancelling those shares. And it is cancelling those shares. तो याद है आपको शेयर 4 फीचर की एंट्री सबको? What is the share 4 feature entry? Equity share capital debit to call in arrear to share 4 feature. इसका लॉजिक क्या था? कैपिटल कैंसिल कर रहे हो तो डेबिट. कॉल इन अरियर मतलब जो पैसा आने वाला है वो अभी नहीं आएगा तो नलिफाई करो क्रेडिट. एंड जो उसने भरा है वो क्या पैसा हम वापस करेंगे वो हम हड़प लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट. सो टू बैंक नहीं होता. जैसे कि समझो एक 10 रुपए का शेयर, उसमें उसने 6 रुपया नहीं भरा और 4 रुपया भरा है तो कैपिटल नलिफाई करना है 10 से, तो कॉल इन अरियर 6 से क्योंकि ये आने वाला नहीं है. और जो 4 वो भरा है क्या हम उसको रिफंड करेंगे? नहीं, हड़प लेंगे. हड़प के कौन से अकाउंट में डाल देंगे? शेयर 4. इज इट क्लियर? व्हाट इज शेयर 4 फीचर फॉर द बिजनेस? रिजर्व. It's a temporary reserve. It's your profit. I understand. It's your profit. But permanent or temporary? Temporary profit. Temporary. खाली 4 फीचर इश्यू तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा. अच्छा बताओ कितने शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो? 1700, 1700. और कब कर रहे हो? व्हाट इज द स्टेज? आफ्टर सेकेंड कॉल. याद है मैं बताता था ये कॉल्ड अप वैल्यू देखनी है. तो कैपिटल विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 1700 इंटू व्हाट? 10 विच इज 17,000. कॉल्ड अप वैल्यू जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट करना. अगर ये 4 फीचर आफ्टर फर्स्ट कॉल हुआ होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते आप? 7 से करते. अगर आफ्टर अलॉटमेंट हुआ होता 5 से करते. एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ओके. कॉल्ड अप वैल्यू जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट.
दिस इज 17,000. कॉलिन एरिया कितना ऐड कर लो 26 9,000. ये कितना है 7,800. एक छोटा सा नोट बनाना है साइड में, इधर दिखाना पी क्यू और आर का इंडिविजुअल 4 फीचर अमाउंट. शेयर 4 फीचर में क्या आता है, हड़पा हुआ पैसा जो वो लोग ने भरा और हमने हड़प लिया. तो ध्यान से देखो और मुझे बताओ 4 फीचर में पी का 4 फीचर कितना है, क्यू का 4 फीचर कितना है और आर का 4 फीचर कितना है. ओके देखो पी का कितना शेयर्स था 500 था और उस 500 पे पी ने क्या भरा था, सिर्फ एप्लीकेशन भरा था 2 रुपए और भाग गया. तो पी से हमने कितना हड़पा 500 इंटू 2,000. ठीक है, ये दिखा देना उधर रफ में कैलकुलेट करके दिखा देना. देन क्यू से, क्यू ने क्या भरा था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो क्यू से 5 रुपए हड़पा है ऑन हाउ मेनी शेयर 800 इंटू 5 4,000 क्यू से हड़पा. एंड आर ने क्या भरा था एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट पार्ट. सो 7 इंटू 400. आर के 400 शेयर्स थे ना, तो 2800. इन सबका टोटल करोगे तो 7,800 मिलना चाहिए. ये आना चाहिए. दिस इज 4 फीचर ऑफ 1,700 इक्विटी शेयर्स. इज दिस क्लियर? वैसे तीनों का कॉल इन अरियर भी आपको मैच करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, बट कॉल इन अरियर नहीं किया तो चलेगा. 4 फीचर करके रखना. इज इट क्लियर? व्हाट हैपेंड? आर यू लिसनिंग? Then you go for reissue. What is reissue? You cancelled the shares and then you did not wait with those kachra shares. What did you do? नया बकरे को ढूंढा और चिपका दिया. Generally reissue price is higher than the face value or lower than the face value. Because you give some incentive to the new bakras. कि भाई आओ डिफॉल्टेड शेयर्स है, हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करो. ओके सभी का फुली पेड अप है 10 रुपीज, आपका भी फुली पेड अप है 10. लेकिन डिस्काउंट आपको 10 रुपया नहीं देना है, आपको कितना देना है 9 रुपया. 1 रुपया कौन डाल रहा है, कंपनी अपने जेब से डाल रहा है. वो हो गया कंपनी के लिए लॉस. वो लॉस कहां से उठाने is reissue of shares just like original issue with all the ads, brokerages, banks, lawyers. No. Reissue is like a resale of shares. Selected investor को पकड़ो, चिपकाओ, खत्म. प्रोसेस कुछ लंबे तरीके से वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है. उसको रीसेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीसेल. पूरा पैसा साथ में आता है तो पार्ट्स का मंगवाने का सवाल नहीं है. तो स्ट्रेट एंट्री क्या होगी आपकी बैंक टू कैपिटल. बट बैंक टू कैपिटल के बीच में एक और चीज आ जाएगी शेयर 4 फीचर. एंट्री बनेगी बैंक शेयर 4 फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. आर यू लिसनिंग? बैंक शेयर 4 फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके ध्यान दो. अमाउंट कैसे लिखोगे आप? कैपिटल वापस किससे मल्टीप्लाई करने का? 8, 5, 10, 7. Why? Because your reissue is also happening at the end. 4 फीचर एंड पे है तो ऑब्वियसली reissue एंड पे ही होगा. तो 1700 इंटू 10 17,000. कॉल्ड अप वैल्यू इज 17,000. लेकिन आप उनको क्या बोल रहे हो शेयर होल्डर्स को, नए बकरे को? यू डोंट पे अस 10, यू पे अस 9. सो यू आर गेटिंग एक्चुअली 1700 into 9 which is 15,300 एंड 1700 रुपया आपका हो गया शेयर 4 फीचर. दिस इज री इश्यू ऑफ 1700 equity shares at 9 per share. Is this clear guys? 4 फीट हो गया, रीइश्यू भी हो गया. इमीडिएटली जैसे रीइश्यू होता है अब एक एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं, पता है? ट्रांसफर एंट्री. ट्रांसफर द मनी
from share forfeiture to capital reserve. Yes or no? Share forfeiture to capital reserve. Temporary to permanent reserve. क्योंकि share forfeiture temporary reserve, उसको उठा के permanent reserve में डाला. What is that permanent reserve? कैपिटल रिजर्व में आ गया, उसके बाद उसको टच नहीं करने का, एसेट खरीद लेने वो रिजर्व का, खत्म, पैसा इन्वेस्ट कर लेने का, समझा? तो एंट्री क्या बनेगा आपका? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अच्छा, अमाउंट कैसे ढूंढोगे? अपने अंतरात्मा से पूछो कि आपने सारे शेयर्स रीइश्यू किए हैं? हाँ जी, सारे हो चुके हैं. तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस अमाउंट? क्रेडिट माइनस डेबिट. 7800 का प्रॉफिट है माइनस 1700 का लॉस, 6100. दिस इज शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. याद आया कुछ कुछ? Is this clear? चलो, next one. Question 22 देखो ध्यान से. Active Company Limited issued 5,000 preference shares of 100 each, payable as 20 on application, 40 on allotment, 20 on first call, and balance on final call. So what is the value of balance final call? Come on. 20. 20, 40, 20, 20. The issue is at par, correct? And how many shares का applications you received? 5,000. So preference हो चाहे equity, उससे फर्क नहीं पड़ता, खाली नाम चेंज कर देने का. equity का क्या लिखने का? preference. सुना? खाली equity की जगह preference लिखना. अच्छा, issue is at par, subscription is at par, and आगे पढ़ो. P was allotted 800 shares, did not pay the allotment. Q was allotted 700 shares, did not pay the first call, and R was allotted 600 shares, did not pay the final call. All their shares were forfeited, and all of the above shares were reissued at 80 per share. Can you see that? तो केस ए तक कैन आई से द प्रॉब्लम इज सेम. आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे टिल केस ए, 11 एंट्रीज आएंगे. उसके बाद एक केस बी भी है, पढ़ो क्या दिया. P's shares were reissued for 90 per share. तो मतलब केस ए अलग है, केस बी अलग है. केस ए में आपने सारे शेयर्स रीइश्यू किए, वो आपको बेसिकली पूछ